Ji, Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, sir, for organizing this entrepreneurship webinar seminar. And I really thankful to Shuja Shah who organized this webinar और दिस इवेंट और इनको क्रेडिट जाता है शुजा साहब को और इन्होंने फिर जो है ना चेयरमैन साहब को क्रेडिट जाता है कि इन्होंने उनको ऑन किया और फैसिलिटेट किया और डॉक्टर तुराब साहब का स्पेशली शुक्रिया कि वो इस इवेंट में शिरकत करने आए हैं और एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा भी रहे हैं इंशाल्लाह फ्रॉम योर फीडबैक डेफिनेटली आई विल आल्सो लर्न फ्रॉम यू एंड apart from teaching in electrical department I'm also a senior member IEEE and guest editor of some journals and I'm also organizing as a counselor IEEE student branch with Tesla and also under which SAS, PES and IEEE we are working and I'm also the advisor of IEEE Power and Energy Society. So you can contact me at this email is there and WhatsApp contact also there. If after this seminar, if you have any query, feel free to contact me, no issue. Also, I have uh, YouTube channel. Also, there is a website. You can also visit these websites and for latest details, inshallah. And now come to the point. My motive today is just to give the idea. Maybe this idea will trigger another idea to you in your mind, inshallah, and you will start another thing. Okay, so keep it in mind that maybe directly some students will benefit from this, and some maybe indirectly benefit from this. Just the idea will be there. Okay, so just keep it in mind and just listen to this one. And motivation is my motivation. I just want to give you motivation that these are the tools. The title, if you will see here. It's a little bit slow and the title was renewable energy modeling tools, just focusing the tools. And the one motivation is this: last time I was in YouTube shower and I was delivering this lecture, and in these tools there was one tool which is the industry expert was there and he was very interested in that tool and he shows some reservations to me and I told him that just to minimize the gap between client and supplier there was some issue. I will discuss when that software will come. And when that issue arose, I told them we are in our university. We are here just to solve these kind of problems. Why not to contact us? So that was very that person was very interested, and he was actually brand manager of that company. So now we are inshallah in near future we are going to start. We are starting MOUs between department and industry inshallah. So this is what we are doing and inshallah funding will also be arranged for these. For example, this event there is no funding for this, no need of this funding, but for mega events where international delegates or national delegates from other universities we will be inviting, we need some funding. So we have to manage that funding as well. So these kind of things is possible. So this is what the idea is, and my motivation to you is that just take this idea and maybe your personality type is different. There are 16 personality types and maybe your personality fall in other category, no problem. Yeah, just maybe you are extrovert or introvert depending on that, and you are the researcher or the sales marketing manager or something which personality you have. So you can take this idea and you can accordingly you can manage your personality and you can grow like chairman Saab told that you will grow your business and something like that. So first of all, for example, here some freelancing websites, for example Fiverr is there, freelancer is there, and also there is a Upwork website is there. So from this website you will see that, for example, one software Heloscope is there, and these softwares only I included only 5 softwares today to 5 tools, but in future next future will be included more and more. Okay, so more tools will be there and inshallah you will have more knowledge. And for example, in here's Helioscope, you can see here that you can also earn money, a handsome amount of money, 17,000, 17,891, for example, here. So this is one, you can say, gig of one seller, level one seller. And similarly, if I'll go to next, a little bit slow, so just be patient. Yes, here you can see that another software you can see 5,900. Just you have to design one project
and you can design. Being an electronic engineer is okay. You can also learn. These are those softwares which I can help you to install in your laptops. Okay. For example, if you are interested in any of the software, any of this tool, you are interested of this lecture, you can contact me, no problem. You can bring your laptop here and I will install. Just the issue is that everyone is delivering the seminar. After that, students told that students are reluctant, are frustrated, or you can say that कि students कहते हैं कि अब हम क्या करें, मतलब आगे शुरू कैसे करें. तो शुरू के लिए हमने वैसे इधर जनवरी और फेब में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में वर्कशॉप्स भी अरेंज किए, वन डे कंप्लीट वर्कशॉप. ये तो मैं ओवरव्यू दूंगा आधे घंटे में, क्या होगा इससे ज्यादा. और इसके साथ साथ फिर आप ये करेंगे कि इसके अंदर वो उनको अटेंड कीजिएगा हमारे साथ, बी इन कंटेक्ट विद इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और मेरे साथ, और शुजात शाह साहब के साथ राब्ते में रहे, तो इंशाल्लाह उनमें आप हिस्सा लें. ठीक है, तो उसमें आपको पूरा ट्रेन करेंगे और आपके लैपटॉप में इंस्टॉल भी करेंगे ये टूल्स, और इंशाल्लाह आपको पूरी रहनुमाई करेंगे. ठीक है, तो इसमें देखें तो फॉर एग्जाम्पल SketchUp 3D फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग इज देयर. 3D बिल्डिंग आप बना सकते हैं. हो सकता है आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, आप कहेंगे आई डोंट हैव कंसर्न विद 3D building. So buildings already imported, you can from this library you can import, and then there is a solar system. For example, renewable, here is a solar system. You can install the solar system and you can analyze for your home, for our university, for our department. Rooftop is available everywhere. Solar energy is there, and we have the space also available. So why not to use that one and optimally design? And also you can search the clients online. WhatsApp groups are there actively working, and also online websites are freelancing websites are there. So you can and just the one project 16,600 900 you can earn. So no, don't be the burden now on your parents. So let's individually struggle hard and then manage our expenses. So ये देखें, इसके अंदर ये देखें SketchUp 3D है. 3D आपने कैसे इंस्टॉल करना है, और उसके अंदर उसके बाद होमर प्रो है कि आपने माइक्रो ग्रिड रिन्यूएबल के अंदर विंड है, सोलर है, या आपने कोई और हाइड्रो है, डीजल है. तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज और डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी टेक्नोलॉजीज, उनको आपने कंबाइन करके कैसे मॉडल बनाने हैं. तो इससे देखें कि आप अर्निंग भी कर सकते हैं, और नॉट ओनली फॉर दिस अर्निंग. My focus is not only freelancing. Freelancing is temporary solution. Why not to use these software tools to publish your research articles as well? And this session will also fruitful to those postgraduate students, master or PhD students who want to use these softwares. And dedicated softwares, I will in the end I will show you the research articles who are published using, for example, this Homer Pro software. They have published another software, Helioscope, PVSys, or something other, SketchUp. They have published articles, so you can publish the articles. And also, for example, being an electronic engineer, sometime, for example, you are doing the research. One part maybe this tool will help you to execute. There are different parts in the research methodology. One part may be executed by this tool, and remaining you can do by your own what you are doing. So like this, yeah, the combination will also be possible, and I will show in the end. So similarly, these softwares I will go through quickly. And for example, here just one software he is teaching to others. Just one software, 1,43,000. He is earning just one software. He will teach one 5 3 modules. He will teach and he will earn this like this. So you can have the motivation like this, and the content which he will teach is there, and another software PVC is there. You can say here this like this. So I will go through like this. Okay, is okay. And you if we will earn, because and these days we just directly contact with the softwares owners or sales persons, and we try to take the free license. We are using that one, and I will provide to you. Anyone interested, I will share with you as well. Okay, no issue. So otherwise देखें तो इसकी importance you will see professional $249. So we cannot pay this hand amount, and inshallah in future our electrical department, inshallah, what my aim, my mission is, these tools when we will have at this level, inshallah, then we will have a we will purchase these tools. And this is next step. Right now just creating the environment. And now here you can see here the another software where this is Skeleton plugin which will be used in SketchUp 3D. So here you can see the one license is $200. So like this, this is just the motivation. PVC you can say 600, or you can say $647. So these are the softwares SketchUp. But I will provide you, and anyone interested, I will provide you and install in your laptops, inshallah, and you will have the basic trainings and everything at client level requirements you can fulfill using these softwares. So for example, this image you can see here, this SketchUp 3D is there, and in here you can see
3D building is there, and then solar system is installed. A rooftop is available, like your electronics department. You can have the rooftop. So why not to use that rooftop and installing the solar system? So here the 3D building is there. I will, in the end, I will also use that software installed in my laptop. I just open a little for 5 minutes each software, and I will just input data, some input data, and I will run the simulation just for a while, and just to show you. And here you can see 3D building is there. Other building, if you don't, you are not interested. For example, civil engineers are interested to design this 3D building. No problem. In library, just import that building, 3D building, and just change according to your own building, and just you focus on this mounting the solar panels like this. So in this way you can work like this. Here you can see the buildings and different buildings and designs. This is the rooftop, and you can see here you can install the solar system. So here, here's the video. Just see. So here one software ये SketchUp की software just 3D design, and there is one plugin, Skillion plugin, and this is actually that Skillion plugin which is used for the solar system design. And you can see here the Google Earth. You can also use the Google Earth to just yeah. The beauty of the software is also that you can directly import data from the that specific application. For example, electronics department is there, so you longitude and latitude you will enter here, and that specification data, solar data, also the radiance, and also temperature data, that directly can be imported from those softwares, and you can use them. So this is the beauty of these softwares, and they directly go to that location, and these softwares will optimize what's the maximum demand you can generate, what's the maximum solar system or any renewable energy source or any system you can install using this software. So this is the you can say the best optimal solutions you can have with this, and then you can decide depending on the situation. Definitely, if it is the rural area, the situation will be different, your department situation, commercial area different, your home different. So situation wise you can see which resources are optimal for this one. These softwares will help you which system is most optimal, and according to which requirements, what is your requirements, that is very helpful using these softwares. So here, so this is okay. Next, let's go to the next like this, and the next one. So it's okay. Let's go because time is limited. The other software, for example, here another Homer, and you can see the next software is let's go next. So the other software, for example, Homer Energy. This is Homer Pro software. The different modules, Homer Pro, Homer Grid, and Homer Front. Different options available in these softwares. And then, for example, there is the previous system that was bulky electrical centralized system. Now we are focusing on distributed systems. Distributed systems, and that is actually the microgrids, where distributed energy is there. And what is microgrid? You can say these are the multiple generation and storage. You can see like this everywhere. It can work independently. For example, generator, wind, solar, जो आप देख सकते हैं, ये देखें ग्रिड है या नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, तो आप ये इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकते हैं, यानी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करें, या फिर ये है कि आप ग्रिड के साथ मैच करके एक्स्ट्रा एनर्जी आप ग्रिड को फीड भी कर सकते हैं. सो इन दिस वे इट विल वर्क. एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, जिस तरह हमारी अथॉरिटी भी आप देखें तो वाइस चांसलर है, तो उन्होंने वाइस चांसलर ने भी अब अपने पास अथॉरिटी नहीं रखी, सारे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, चेयरमैन, डीन्स, उनको अथॉरिटी डेलीगेट कर दी. इसी तरह यहाँ सेंट्रलाइज जो सिस्टम था उसको भी हम डिस्ट्रीब्यूटेड की तरफ आ रहे हैं. वैसे भी लॉसेज भी कम और भी प्रॉज एंड कॉन है, तो प्रॉज जो है उसके हम उसको अवेल करने के लिए हम इस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो है वो हम कर रहे हैं कि भी उसको करें ताकि लॉसेज भी ट्रांसमिशन के काम हो गए, और उसके बाद हम उसमें तो इसके अंदर और डिफरेंट फायदे हैं, रेजिलियंसी है, इकोनॉमिक्स एंड, और इनकी डेप्थ में नहीं जा रहा, मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसलिए आपको मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा कि बोर ना हो जाए. अच्छा, इसमें देखें अब ऑफ ग्रिड है, ऑन ग्रिड है. ग्रिड के साथ जैसे हमारी उधर इलेक्ट्रिकल में देखें तो सोलर सिस्टम एक अपने लगाया हुआ है, ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम है, ऑन ग्रिड है. तो इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस भी हैं कि स्टैंड अलोन सिस्टम है, टेलीकॉम साइट है, जो रिमोट एरियाज होते हैं जहां ग्रिड अवेलेबल नहीं है वहां इनकी विजिबिलिटी है. और इसी तरह देखें तो ग्रिड कनेक्टेड है, तो जो यूनिवर्सिटी जिस तरह हमारे कैंपसेस हैं तो हमारे पास ग्रिड अवेलेबल है, तो हम ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम दैट विल बी मोर फिजिबल फॉर दैट. तो उसमें तो इस तरीके से हम एक पूरा सिस्टम बना सकते हैं. तो चलें, इसके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन है और ये सारा पूरा इसमें बताया हुआ है कि माइक्रोग्रिड जो है उसका 2024 तक का एनालिसिस देखें तो इसकी जो एक्सपर्ट्स है और इसकी भी डिमांड इज इंक्रीजिंग.
फॉर द माइक्रोग्रिड डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्सेज। तो अब इसके बाद देखें तो पाकिस्तान के अंदर भी डिफरेंट जगह पे देखें, मैप के अंदर माइक्रोग्रिड्स का देखें तो डिफरेंट माइक्रोग्रिड्स आर इंस्टॉल्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सिस्टम इज देयर, और डिफरेंट कंपनीज जो है माइक्रोग्रिड इन्वेस्ट में जो इन्वेस्ट कर रही हैं, अब इन कंपनीज के साथ हम राब्ते कर सकते हैं। सो बीइंग इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर आप भी रेलेवेंस जब देखेंगे तो इन कंपनीज के साथ ये अगला मेरा स्टेप है कि भी आप इनके साथ एक के साथ अभी राब्ता हुआ इंशाल्लाह सबके साथ, तो ये इनको हम इन करेंगे और ये माइक्रोग्रिड, और इसी तरह आप भी अपना रिसर्च एरिया में भी आप देख सकते हैं, कोई और रिसर्च एरिया में दैट्स नॉट द इशू, तो उसको भी आप इस तरीके से इसको लिंक कर सकते हैं। तो अब आप देखें इसके बाद आपने टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करनी है। कई दफा कंफ्यूज होते हैं कि यार विंड इज अवेलेबल फॉर एग्जांपल इन कोयटा साइड, यार यू कैन से इन सिंध, सिंध में तो चलो विंड उधर उस एरिया में हैदराबाद और वो है, लेकिन बलोचिस्तान में सोलर है सारा, तो उसमें ऑप्टिमल लोकेशन एक तो हमें देखना है कि मैप के अंदर कि किस लोकेशन पे मेरे पास सोलर भी अवेलेबल हो या विंड भी हो, या मैं दोनों सोर्स लगाना चाह रहा हूँ। एक तो इन सॉफ्टवेयर की ब्यूटी है कि आपको लोकेशन के साथ ना आप डिफरेंट केस स्टडीज ले सकते हैं। तो केस स्टडीज लेके यू कैन रन द सिमुलेशन एंड you can check whether this location is optimal for weather, wind or not, for solar or only for solar, like that different combinations. You can input that data and available sources, size and availability, equipment price क्या है, ये सारा इकोनॉमिक एनालिसिस भी हो जाएगा। अच्छा, दो मेन टारगेट होंगे हमारे कि सबसे पहले इकोनॉमिक एनालिसिस और सारा ऑप्टिमल यानी इकोनॉमिक एनालिसिस हो, और उसके बाद जो है दूसरा हमारा क्या होगा इसके अंदर कि उसका जो आपके कंपोनेंट्स हमने जो विंड रिसोर्स सेलेक्ट करना है वो हमारी ऑप्टिमल सिलेक्शन है कि कौन सा हमारे लिए फिजिबल होगा किस लोकेशन के लिए। उसके बाद आगे थर्ड वो भी है क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर हमने इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को भी सामने रखना है, तो उसका भी मैंने एक टूल बीच में आई हैव इंक्लूडेड दैट टूल एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को सामने रखते हुए, क्योंकि ये जो हमारे जो इजिप्ट में जो आपका ये है फ्रांस के अंदर 2015 में हुई थी ना ये जो ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल एमिशन और ग्लोबल ये जो क्लाइमेट चेंज है इसके वाले से जो समिट हुई थी, उसमें जितने कंट्रीज है हमारा पाकिस्तान भी उसमें शामिल है, तो उसमें से तकरीबन जो है कोई 40 के करीब 36 से 40 कंट्रीज हैं जो कि इस तरह ये जो एमिशन के हवाले से मैं सॉफ्टवेयर टूल बताऊंगा उसको यूज करके वो रिपोर्ट जनरेट करके वो सबमिट इंटरनेशनल लेवल पे वो उसकी वो होती है सबमिशन। तो इस तरीके से ये टूल्स काफी हेल्पफुल है इस हवाले से नेशनल लेवल पे भी, और फिर जो है आप इंटरनेशनल, और ये सारे टूल्स मैंने जो चूज किए दैट एवरीवन इज यूजिंग अराउंड द ग्लोब। तो ये देखिए होमवर्क ये हो गया इसका सॉफ्टवेयर, होमवर्क एब्रीवेशन ये लिखा हुआ है इसके वाले से, और इसमें बाकी ये सारी डिटेल है। इसको अगर आप देखें तो इसका ऑप्टिमाइजेशन कैसे करता है, एनालिसिस करता है, इसमें सिमुलेशन, ऑप्टिमाइजेशन, सेंसिटिविटी एनालिसिस है, और उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स, उसमें साइजिंग है, परफॉर्मेंस डिटेल है, फाइनेंशियल और वेरियस एस्पेक्ट्स जो है वो कवर होंगे। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये था। कंसल्टिंग सर्विसेज है, जिस तरह ये देखिए सारी कंपनीज है, अरीना है, ये सारे ये इस सॉफ्टवेयर के हवाले से और इसमें माइक्रोग्रिड डिजाइन के हवाले से कंसल्टेशन सर्विसेज दे रहे हैं, और इंशाल्लाह माय एम इज के इसके अंदर हम इंशाल्लाह हमारा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट भी इसके अंदर आए, मतलब पाकिस्तान आए पहले तो नेशनल लेवल, फिर हम हमारी यूनिवर्सिटीज आए, और यूनिवर्सिटीज में मैं इलेक्ट्रिकल से हूँ तो मैं उसको समझूंगा कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को इस लिस्ट के अंदर we are including, and consulting services inshallah will be available for these type of things, और कम्युनिटी सर्विसेज उसके अंदर डेफिनेटली उसका पार्ट होगा। और इसके अंदर देखें तो होम एनर्जी ट्रेनिंग के हवाले से देखें तो डेफिनेटली वी आर आल्सो इनिशिएटिंग दिस स्टेप, एंड इंशाल्लाह so soon you will see that in our department these kind of workshops, trainings will be there. This is seminar, webinars already ongoing, seminars are going, and then we are going towards workshops. 1.CPD workshops will be inshallah soon in our department, and definitely we will collaborate other departments, and inshallah will collaborative efforts will be there inshallah. And here you can see uh, okay, these are the videos. Okay, these I think so not I will go through other softwares physically, and I will show you those softwares. Videos are I think so not running, no issue. And next one is, for example, here you can see there is a PVC software simulation of the PV system. Let me show you. So just to for example, that was first software, PVC software was there, and it will take a little time. So for example, here PVC software is there. For example, here you can see the grid connected system there, standalone system pumping, solar pumping system is there. For example, you want to install the solar system because we are the irrigation in our country is the main major, ये हमारा एग्रीकल्चर लैंड है और उसके अंदर हम सोलर पंपिंग सिस्टम शुरू करते हैं। दिस सॉफ्टवेयर इज आल्सो डेडिकेटेड फॉर दिस सोलर पंपिंग सिस्टम, स्टैंड अलोन सिस्टम, यू कैन सी हियर ग्रिड कनेक्टेड। आई विल शो यू दीज सिमुलेशंस लेटर ऑन।
I will run this in the end. And the other software which I have told you, for example, here SketchUp Pro 3D, SketchUp 3D, and here I told you that this SketchUp 3D software is there, and when I will run, for example, these different architectural, these are the details. I'm not going through these details, just show you to, for example, here you can see this is the environment here, and for example, this environment, this is SketchUp 3D software. ये सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर सारे यूज करते हैं। ये मतलब ये जो आपका ये एनवायरनमेंट है, ये तो 3D स्केचअप, 3D आपने स्केच करना है तो वो कर सकते हैं, सारे कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर ये जो प्लगइन है, फॉर एग्जांपल दिस प्लगइन विल हेल्प यू टू इंस्टॉल द सोलर सिस्टम। सो देखिए सोलर के लिए एक जस्ट अलग से प्लगइन है, और इस प्लगइन की मैंने प्राइस कितनी बताई है आपको। इस प्लगइन की अगर मैं प्राइस बताऊं, जस्ट आप मैं इधर पीछे लेके जाऊं अगर, तो इसकी प्राइस जो है वो, अच्छा 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 अच्छा, ओह सॉरी, थैंक यू, आपने किया हुआ ये तो, अच्छा हाँ यस। तो ये सॉफ्टवेयर ये पहले भी नजर नहीं आया होगा, नहीं है, अब बता दिया कि नहीं अभी पहले मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, अब इसमें देखिए ग्रिड कनेक्टेड स्टैंड ऑन पंपिंग सिस्टम था, ये जो एक सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट बता रहा था। अब मैं इसके बाद दूसरे पे आता हूँ, ये देखिए आगे। अब इसके अंदर देखें तो स्केचअप 3D है फॉर एग्जांपल। अब इसके अंदर मैंने ये बताया कि ये तो 3D है एनवायरनमेंट, सिविल मैकेनिकल सारे इंजीनियर 3D स्ट्रक्चर बनाना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, आप चूज कर सकते हैं। एंड उसके बाद देखिए आपने क्लाइंट्स को दिखाना है, असल में हमने अपनी इंजीनियरिंग को ट्रांसफॉर्म करना है क्लाइंट्स को कैसे, आप 3D में आप हर चीज दिखा सकते हैं उनको कि देखिए हमारा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई प्रोजेक्ट हो तो उसको 3D में कैसे प्रेजेंट करना है, दिस इज प्रेजेंटेशन कि आप उसमें इसमें करें, और क्लाइंट को चीज बनने से पहले उसको प्रोडक्ट सामने आ जाए कि द विजुअलाइजेशन ऑफ दैट प्रोडक्ट विल बी लाइक दैट। और उसके बाद देखें एक प्लगइन इंस्टॉल किया स्किलियन। अब स्किलियन को मैं अगर आपको दिखाऊं तो स्किलियन जो है, अगर इसको मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं, जो मैंने आपको जस्ट शुरू में दिखाया था, फॉर एग्जांपल हियर ये देखें, ये मैं बता रहा था कि जस्ट आपको ये देखें, तो इसके अंदर अगर ये एक एक लाइसेंस $200 डाल चुका है, यानी एक इसका जो क्या नाम है, इसका जो एक ये प्लगइन है, तो वो प्लगइन देखें तो ये इसकी प्राइस है। लेकिन वी विल हैव अनदर ऑप्शंस डायरेक्टली कनेक्टिंग विद दैट सेल्स पर्सन एंड, और एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, वो भी हमें एक प्लस पॉइंट मिल जाता है इस वाले से भी। तो वो हम जो है ना इसको ये यूज करते हैं। अब ये जो है प्लगइन, ये वैसे ही आपको नहीं मिलेगा ये सर। अब इसके अंदर हम ये प्लगइन जस्ट आप सोलर सिस्टम अगर इंस्टॉल करना है, रूफटॉप पे कहीं भी करना है, तो देखिए ये दिस वन प्लगइन इज इनफ फॉर यू, एंड एनवायरनमेंट इज स्केचअप 3D। तो आप 3D बिल्डिंग इधर बनाएं, फॉर एग्जांपल मैं बना के दिखाऊंगा, अभी नहीं आपको बनाता, अभी थोड़ा जो वैसे बता रहा हूं, और इसके अंदर आप जो है वो सोलर सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, ये हो गया। अब आप आगे चलते हैं, फॉर एग्जांपल इसके अंदर ये हो गया, ये मैंने आपको स्कॉलर स्केचअप का बता दिया। फिर होमवर्क का बताता हूँ। होमवर्क का फॉर एग्जांपल अभी मैं बता रहा था आपको, तो इधर मैं सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ, फॉर एग्जांपल हियर यू कैन सी दिस वन। सो ये ओपन किया, इस होमवर्क के अंदर आप जाएंगे, और इस इन्वायरमेंट में आप फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेटेड मतलब कंबाइंड सिस्टम आपका सोलर विंड और इस तरह के रिसोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल कंपोनेंट्स में देखें, विंड है, पीवी है, जनरेटर है, डीजल जनरेटर है, स्टोरेज है, बैटरी स्टोरेज है, डिफरेंट स्टोरेज है, कन्वर्टर है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, और आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएगी बीच में, और उसके अंदर उसका कंट्रोल कंट्रोल इसमें ऑप्शन नहीं है, उसके लिए मैंने अलग से सिक्स्थ वन है जो कि उसके अंदर मतलब मिसाल के तौर पर मैटलैब सिमुलिंक में भी आप उसको वो कर सकते हैं। और उसके बाद हाइड्रो है, जिस तरह हमारे पास हाइड्रो के रिसोर्सेज हैं, इधर ये कैनाल भी जा रही है, और इसमें 4-5 हेड भी अवेलेबल, और कुछ मोड़ा बरादू भी लगी हुई है। खानपुर डैम में चले वो दूर है, ये मोड़ा बरादू हमारे एनर्जी डिपार्टमेंट के अंडर ही है, उधर हम विजिट करते रहते हैं। तो ये कुछ विजिट भी हम फिजिकल करते रहते हैं। कीप इन टच विद अस एंड इंशाल्लाह दैट विजिट बी पार्ट ऑफ दैट विजिट्स, और उसमें ये बात जो हम इंडस्ट्रीज में जाते हैं तो उसको भी आप उसको भी कैश करें। और इसमें देखें ये आपका हो गया ये एनवायरनमेंट। अब इसके अंदर सिमुलेशन में आप आखिर में देखूंगा ग्रिड सिस्टम लगाना है, तो ग्रिड भी आप कनेक्ट कर दें, और बाकी जो कंपोनेंट्स हैं और रिसोर्सेज के अंदर सारा रिसोर्सेज डाटा है। और मैं अभी आपको बताऊंगा कि मैप देखिए हर जगह अवेलेबल है मैप, कि आप इधर यूटी टेक्सला भी डालेंगे, फॉर एग्जांपल यूटी टेक्सला में इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट भी डालेंगे, तो दैट विल बी देयर। यूटी टेक्सला इसको एंटर करें तो आप देखिए यूटी टेक्सला आ गया। अब इसको थोड़ा जूम करें, जूम करके आप इसके अंदर से अपना इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट या उसकी वो बिल्डिंग और उसका एरिया निकाल, इसी तरह बाकी सॉफ्टवेयर में भी हो जाता है। तो ये मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दिया होमवर्क का। और उसके बाद आगे चले अगर हम, तो ये उम्र के बाद फिर मैंने आपको थर्ड जो सेकंड वन नेक्स्ट थर्ड वन बताया आपको। थर्ड वन वो है, ये देखिए ये अभी रन हो जाएगा, इसको ये देखिए मैं आपको, ये देखिए ये एनवायरनमेंट है, फॉर एग्जांपल हियर यू कैन सी
इसमें डिफरेंट बायोमास, हाइड्रोजन, कंबाइंड हीट पावर, एडवांस ग्रिड, एडवांस लोड, ये सारे आप इसको सिलेक्ट करें। और उसके बाद देखें तो आगे ये, और नेक्स्ट में अगर जाएं तो ये देखें, ये मैप आपने सेलेक्ट करना है, लोकेशन सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपने ये पूरा आपने जो भी कंपोनेंट पीवी उसकी सारी डाटा देंगे, डाटा एंटर करेंगे, उसकी इनिशियल आपका लोकल कंपनी का अगर आपने कोई सिस्टम लिया हुआ है तो वो भी, इसके अंदर लाइब्रेरी भी है, मतलब आपने किसी कंपनी का, आप वेल नोन कंपनी की चीजें परचेज करते हैं। और मेरा मोटिव ये नहीं है कि वेल नोन कंपनी, आवर लोकल मैन्युफैक्चरिंग विल बी देयर, दिस इज अनदर स्टेप। आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपने ये काम करना है कि हम मतलब विंड का सिस्टम बना रहे हैं, हम उधर कैरेट पावर प्लांट गए, हाइड्रो पावर प्लांट गए हैं, ये जो कोहोटा में है, चाइनीज थ्री गार्जियस कंपनी है, बड़ी फेमस चाइना की। और वो उधर वो उन्होंने हाइड्रो सिस्टम बनाया हुआ है, उधर लगाया हुआ है। अब उसमें मसला ये है कि उधर चाइनीज कंपनियां वही आती हैं और अपना ही सिस्टम लगा के लोकली, ना तो कम्युनिटी को ट्रेन किया जाता है, उधर से चाइना की टेक्नोलॉजी आ रही है, हमें लॉन्ग टर्म में क्या फायदा है कि भाई चाइना की टेक्नोलॉजी कराएगी तो वो खुद ही आते हैं, खुद ही चाइनीज लगाते हैं, तो लोकल इंजीनियर्स तो हमारे ट्रेंड हो रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन लोकल कम्युनिटी को मजीद इसमें कि लोकल हमारी चीजें में, जिस तरह इसकी एक एग्जांपल इधर चित्राल इंजीनियरिंग वर्क्स आप देखें, प्रोज एंड कॉन ऑलवेज देयर कि भाई चित्राल इंजीनियरिंग वर्क्स वो अपनी हाइड्रो टर्बाइंस को बनाते थे इधर चित्राल वाले, तो वो उन्होंने लगाई भी है। मोड़ा बरादू में भी 40 किलोवाट का एक है, 40 किलोवाट का दूसरा सिस्टम है, फिर 160 किलोवाट का खानपुर डैम में वो बर्फ का कारखाना लगाया उन्होंने, खानपुर डैम में हम गए तो उधर आप देखें बर्फ भी खुद फ्री में बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, वही डैम का जो पानी खानपुर डैम का आ रहा है उसी को यूज करके, और वो जस्ट उन्होंने डाइवर्ट किया अपनी लोकेशन से, और उससे और साथ पेट्रोल पंप और सारे जो है ना वो भी चला रहे हैं, तो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ये जो एनर्जी है आपकी, इस एनर्जी को आप यूटिलाइज करके, तो आप वहां देखें कि वो कुछ चाइना की वो टर्बाइंस लगाई हैं, जस्ट टर्बाइंस फॉर एग्जांपल, अदरवाइज पीवी सिस्टम और इसी तरह दूसरे, और उसमें लगाने के बाद बाकी उन्होंने ये किया कि अपने लोकल भी लगाई हैं, और कंपैरिजन भी हो सकता है। अभी यूटी पिशावर में उनका यूएस एड से उन्होंने बड़ी बहुत जबरदस्त एनर्जी सिस्टम लैब बनाई है, और उसके अंदर भी वो कह रहे थे कि भी हमें इशू ये आता है कि जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती है इनकी एफिशिएंसी इतनी नहीं होती, ये इशू राइज हुआ कि भी एफिशिएंसी नहीं होती या इनके थोड़ा इशू होता है, तो हम चाहते हैं कि टेस्टिंग लेवल पे चाइनीज की जो वहां से या कहीं से भी बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और जो हमारी लोकल बनी है, हम एक लैब के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं कि जहां दोनों की टेस्टिंग हो सके, और हम ये देख सकेंगे जो हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें कितना फर्क है, ताकि इसको फ्यूचर में इंप्रूव किया जा सके। तो इससे ये होगा कि तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग होगी, या बाहर से भी टेक्नोलॉजी आ रही है तो वो आप इसको डाइवर्ट करें कि बाहर से टेक्नोलॉजी आए तो वो बंदे हमें ट्रेन करके जाए इधर से, इधर ट्रेन करें हमारे, और फिर वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो। ये ना हो कि बस टेक्नोलॉजी हम ट्रेनर उधर उनके खरीदते रहे और सब कुछ वो, और उसके बाद हमारे पास बस जस्ट उनको यूज करने का, ये तो नहीं है ना। तो हमने वो उसको इसी हवाले से देखना है। तो इसी तरह विंड है या हाइड्रो है या सोलर है, उसका सिस्टम हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन इस इन सॉफ्टवेयर की ब्यूटी ये है कि इनके अंदर वो जितनी भी कंपनीज हैं, उनके जो भी वेल नोन कंपनी, उनसे अगर आप सोलर लेते हैं उनकी सारी स्पेक्स डाटा इज अवेलेबल देयर, ठीक है, इन सॉफ्टवेयर टूल्स में। और अगर आपका फॉर एग्जांपल आपने लोकल मैन्युफैक्चरिंग की है, मेरा जो मेन लिंक करने का मकसद था कि वो जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग आपने टूल्स किए हैं, उन टूल्स को, वो जो डाटा है, फॉर एग्जांपल आपने सोलर पैनल बनाया है, अपना आपकी कंपनी है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ शुजा साहब है, तो शुजा शाह सोलर सिस्टम, सोलर कंपनी है, या शुजा शाह सोलर पैनल के नाम से, या शुजा सोलर पैनल, अब शुजा के नाम से सोलर, और उनकी अपनी स्पेक्स होंगी, उनका अपना वेट होगा, उनकी अपनी डायमेंशन होंगी, उनकी अपनी वाटेज होगी, वो वाटेज का डाटा भी आप इस लाइब्रेरी, इन टूल्स के अंदर आप अपना डाटा उस नाम से उस लाइब्रेरी में आप ऐड कर सकते हैं, और वो टूल्स जो है आप उसको फ्यूचर में उसको आप यूज करते हैं। तो मतलब इस तरीके से आप जो है इनके अंदर ये दिस इज फ्लेक्सिबिलिटी इज आल्सो देयर। और इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ ये डेफिनेटली ये उसने सिमुलेशन का पैराडाइम बताया हुआ है कि किस तरीके से ये सॉफ्टवेयर काम करता है। इसको हम आगे स्किप करते हैं, और इसके बाद देखें कुछ रिजल्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल रिजल्ट्स सेंसिटिविटी एनालिसिस है, फॉर एग्जांपल आपने एक केस बनाया, उसके अंदर मल्टीपल केसेस, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि यहाँ विंड कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है, मतलब एक पैरामीटर, फॉर एग्जांपल ये सोलर है, कभी यहाँ मतलब जिस तरह अभी है सोलर सिस्टम है, एनर्जी बहुत कम है क्योंकि बादल आए हुए हैं, तो अब ये सूरत हाल है, हम चाहते हैं कि ठीक है 6 रेडियंस इसकी रहती है, या मतलब रेडियंस 1000 इसकी जो है ना किलोवाट आवर में, या रेडियंस उसकी होती है, लेकिन उसके अंदर कभी कभी ये सूरत हाल होती है। वर्स्ट केस सिनेरियो को टेस्ट करने के लिए यू हैव सेंसिटिविटी एनालिसिस, और ये देखें शुरू वाली जो ये आपको विंडो नजर आ रही है, ये डिफरेंट सेंसिटिविटी एनालिसिस है। फॉर एग्जांपल विंड में देखें 3 4 5 6 7, ये मैक्सिमम विंड स्पीड होगी तो आपका सिस्टम कैसे काम करेगा, कॉस्ट ऑफ एनर्जी कितने पर यूनिट जब आप कस्टमर को देंगे, तो पर यूनिट उसका बिजली का जो बिल आएगा उसमें आपको उसको क्या बताएंगे कि भाई पर यूनिट ये आएगी, वर्स्ट केस में ये आ रही है, तो देन आप क्लाइंट की लैंग्वेज में बात करेंगे। सॉफ्टवेयर तो आपको ये टेक्निकल डिटेल देगा, दैट क्लाइंट की लैंग्वेज में आपको बताएंगे कि दिस कॉस्ट ऑफ एनर्जी विल बी फीजिबल टू यू, और ये सिस्टम आपके लिए। तो इस तरीके से ये जो चीजें हैं ये सारी आपको इस सॉफ्टवेयर के अंदर मिलेंगी।
आप इसके अंदर अगला सॉफ्टवेयर ये देखिए पीवीसिस्ट है, जो कि मैंने अभी ओपन किया था आपके सामने। ये फॉर एग्जांपल ये सॉफ्टवेयर था, ग्रिड कनेक्टेड है, स्टैंड अलोन है, सिस्टम स्टैंड अलोन है तो बैटरी सिस्टम है, जैसे स्टैंड अलोन कार के अंदर भी हम लगाते हैं अगर, तो वो ग्रिड के साथ ज्यादातर कनेक्ट नहीं होता। अभी नेट मीटरिंग शुरू हो गई है कि लोगों ने अपना सोलर सिस्टम लगाया तो ग्रिड को फीड कर रहे हैं नेट मीटरिंग, लेकिन स्टैंड अलोन हमारे नॉर्मली चलते हैं। बिजली वापडा गई तो हम अपना सोलर सिस्टम चलाते हैं, तो स्टैंड अलोन है, बैटरी लगी होती है हमारे साथ, तो वो भी सिस्टम है, उसको आप स्टडी कर सकते हैं। और इस तरह पंपिंग सिस्टम है कि इरिगेशन के अंदर, तो ये मेन चीजें सारी इसके अंदर वो फोकस होती हैं। और आगे चले अगर हम, तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ये इसको जस्ट गो थ्रू करते हैं। रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल आप इसको यूज कर सकते हैं। आपके जिस तरह डेरा टाइप होते हैं गाँव के अंदर या सारे, उनको आप प्रपोज कर सकते हैं। ये हम कम्युनिकेशन, कुछ स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, कुछ की होती है रिसर्च एंड, आपने पर्सनैलिटी को भी चेक करना है साथ साथ। आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, रिसर्च के हवाले से आप R&D में है, कुछ मार्केटिंग के हवाले से अच्छे होंगे, तो एक ग्रुप में जब आप काम करेंगे तो वो आप ऑप्टिमल तरीके से इसको वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखें, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल एरियाज है, उसके अंदर आपने स्ट्रिंग साइज है, ये टेक्निकल टर्म्स है, टिल्ट एंगल है, क्या टिल्ट एंगल फिजिबल होगा इसके अंदर। आप इस सॉफ्टवेयर की ये भी ब्यूटी है, फॉर एग्जाम्पल आप इस छत पे आप देखना चाहते हैं कि भी इस लोकेशन में किस एंगल पे मैं सोलर सिस्टम लगाऊं, क्या उसकी पोजीशन रखूं तो मेरी एनर्जी मैक्सिमम होगी। अब ये सारी फिजिबिलिटी एनालिसिस सारा ये आपको दीज टूल्स विल बी हेल्पिंग टू यू लाइक दैट। और अच्छा इसके बाद देखें तो ये एनवायरनमेंट है इसका, ये सारा एनवायरनमेंट जो मैंने सॉफ्टवेयर ओपन करके दिखाया है उसी के अंदर ये सारा आपको इंटरफेस है, मेट्रो डाटा है, मेट्रो डाटा भी मैं इनपुट करके दिखाऊंगा आखिर में थोड़ी टाइम के लिए। तो आप लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की लोकेशन डालेंगे यहाँ से, और इस्लामाबाद और टेक्सला टेक्सला की, तो यहाँ से आपको वो डाटा भी मिल जाएगा। अच्छा इसी तरह ये देखिए मेट्रो डाटा हो गया। फिर उसके बाद देखें तो आगे फिर आपका ये GHG DI आपकी टर्मिनोलॉजीज हैं, उस डाटा को जब ऑनलाइन आप वहां से इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करने के बाद फिर आप जो है वो सारा उसको यूज कर सकेंगे। तो इस तरह देखें सारा आपने इसके अंदर न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। फिर इसका टिल्ट एंगल है, फॉर एग्जांपल टिल्टिंग, इसमें भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं कि आपने सिस्टम एक लगा रहे हैं, उस सिस्टम की कौन सी टाइप है, कौन से उसको पोजीशनिंग के हवाले से डिफरेंट टाइप्स हैं, वो इसमें डिटेल्ड के साथ आप एनालिसिस कर सकते हैं। फिर इनपुट की तरह डिटेल्ड एनालिसिस, फॉर एग्जांपल दिस सॉफ्टवेयर, द ब्यूटी ऑफ दिस सॉफ्टवेयर कि डिटेल्ड आप इनपुट पैरामीटर्स डाल के उसमें सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं कि उसके अंदर वो सूरत क्या बनती है। और इसी तरह देखें लॉसेस है, डिटेल्ड लॉसेस इनपुट डाटा देंगे आप, डिटेल इसका एनालिसिस कर सकते हैं। और अच्छा अब आप देखें इसके अंदर, तो ये हमारा ये सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। अच्छा इसके बाद सन पाथ डायग्राम है, ये सारी टेक्निकल टर्म्स है, मैं इसको थोड़ा सा स्किप करूंगा, ठीक है। और रिजल्ट एनालिसिस के बाद ये सारा आपका ये सारे रिजल्ट्स आ गए। अच्छा इसके बाद देखें आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर मैं आपको सॉफ्टवेयर दिखाऊंगा अगर एक, तो ये हीलियोस्कोप, हीलियोस्कोप के अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर भी आप एक सिस्टम, अगर आप क्लाउड बेस, इसकी ब्यूटी ये है कि बाकी सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं, सिस्टम की स्पेक्स चाहिए, लेकिन इसके अंदर आप वेबसाइट के ऊपर लॉग इन करके आप इसकी डिटेल डाल सकते हैं। और इस सॉफ्टवेयर को अगर मैं दिखाऊंगा आपको, तो जस्ट हीलियोस्कोप, आई विल एंटर हीलियोस्कोप, बस ये 5 मिनट में हम एंटर करते हैं, खत्म करते हैं। ये देखिए न्यू प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल हियर, और इसको डिटेल तो बाद में हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो न्यू प्रोजेक्ट यहाँ से क्लिक करेंगे और न्यू प्रोजेक्ट एंटर करके अब यहाँ से डाटा डालेंगे। डाटा डालने के बाद फॉर एग्जांपल हियर मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट देखो, तो ये मैप के ऊपर डायरेक्टली हमारा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, और यहाँ से ये अभी थोड़ा इंटरनेट शायद स्लो, ये देखिए यूनिवर्सिटी हमारी आ गई। यहाँ नीचे डिटेल डालें, क्रिएट प्रोजेक्ट कर दें, ठीक। इसके बाद आगे काम सारा वो आप करेंगे, ठीक। तो इस तरीके से आप देखें तो ये हीलियोस्कोप आपका काम करेगा, ठीक। इसमें बाकी अब डिजाइन में सारा इसको स्किप कर रहा हूँ, सारी शेडिंग एनालिसिस, ट्रीज लगे हुए हैं, देखिए लंबे ट्रीज हैं, ट्रीज भी आप अंदर एंटर करके उसका शेडिंग एनालिसिस करेंगे कि इसका साया, पूरा सन जब पाथ है उस सन पाथ में इसका साया किस तरह इम्पैक्ट कर रहा है। जिन पैनल्स पे कर रहा है डिलीट कर दें, उनको आप रिमूव करें। तो ये देखिए कितना इकोनॉमिक एनालिसिस आप कर सकते हैं इस हवाले से कि आप उसको वो कर सकते हैं। अब इसके अंदर देखें, जस्ट मैं स्किप करता हूँ, ये देखें फॉर एग्जांपल ये पैनल्स हैं, इसमें जो है ऑब्स्टेकल्स हैं, ट्रीज हो सकते हैं, या कुछ भी डाटा इनपुट डाटा आप डालें, और इसके अंदर पूरा 3D शेडिंग एनालिसिस है, शेडिंग एनालिसिस करें। और इसके बाद देखें तो ये तो इस तरीके से बाकी अब और भी लीप एनवायरमेंटल एनालिसिस के हवाले से भी सॉफ्टवेयर थे, वो मैं आई विल स्किपिंग दो सॉफ्टवेयर्स। और रिसर्च आर्टिकल्स में आखिरी 2-3 मिनट में मैं जस्ट आपको रिसर्च आर्टिकल्स की तरफ लेके आऊंगा। फॉर एग्जांपल पीवीसिस्ट एनवायरनमेंट है, तो इसके ऊपर अगर आप देखें तो एनालिसिस सोलर सिस्टम का है, अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर आप पूरा उसके अंदर पूरी मेथोडोलॉजी, ये सारी मेथोडोलॉजी इज द पार्ट ऑफ दैट टूल, इन टूल्स के अंदर ही आप करते हैं। करने के बाद पूरा उसका एनालिसिस करेंगे। ये टूल्स की सारी जो है आप देखें तो उसके अंदर से ग्राफ सारे जनरेट टूल से होते हैं। इनपुट डाटा के बाद सन पाथ डायग्राम है, और पूरा आगे एनर्जी एनालिसिस है। सन लॉस डायग्राम है, जो कि मेनली ब्यूटी ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, डिटेल्ड लॉसेस है कि इनपुट आपने डाली
आउटपुट ये है, बीच में लॉसेस कहाँ कहाँ हुए हैं सारा आपको एनालिसिस, और किस लॉस, कौन से लॉसेस ज्यादा है, यू कैन अकोमोडेट दोज लॉसेस के भी, केबल्स की वजह से है, किसकी वजह से, आपका इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है जिसके कोई इन्वर्टर के लॉसेस ज्यादा है, इन्वर्टर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स वो आप कर सकते हैं। इसी तरह देखें यहाँ, ये फॉर एग्जांपल ये पीवीसी सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर देखें तो ये पूरी उसकी जस्ट सॉफ्टवेयर एनालिसिस है, यू कैन आल्सो पब्लिश दी रिसर्च आर्टिकल्स। और उसके बाद देखें तो ये सॉफ्टवेयर, चलें इनको स्किप करते हैं आगे, ये वाले ये हो गए। फॉर एग्जांपल ये देखें, अब ये हीलियोस्कोप पे है, फॉर एग्जांपल हीलियोस्कोप पे सॉफ्टवेयर, ये वेब बेस्ड है, मैंने आपको बताया। अब इसके अंदर देखें तो हीलियोस्कोप के अंदर ये देखें, ऑनलाइन लोकेशन ली, लेने के बाद आप देखें नीचे पूरी मेथोडोलॉजी लिखी, ये पूरी जो मेथोडोलॉजी 1 से ये 10 तक स्टेप्स लिखे हुए हैं, ये सारे उस हीलियोस्कोप का पार्ट है, उसके अंदर सारे होते हैं। अब इन स्टेप्स को लिख के पूरा इसके अंदर देखें, कॉलेज कैंपस सेलेक्ट किया, डाटा कलेक्ट किया, सॉफ्टवेयर भी सिमुलेट किया, सिमुलेट करने के बाद अगला पार्ट जो है ये देखें, वो अलग से सॉफ्टवेयर आप यानी इसको एज अ पॉड यूज करके आगे अगली एनालिसिस आप अपना इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरह आप कॉम्बिनेशन ऑफ द टूल्स एंड योर रिसर्च आर्टिकल और वन लाइन डायग्राम, ये देखें ये सारी ये सॉफ्टवेयर के अंदर सारी इसमें आती है। तो ये हो गया। इसके बाद देखें ये इसको मैंने बता दिया आपको। इस तरह होमर प्रो है, फॉर एग्जांपल कुछ सिस्टम आपने बनाया, इसकी लोकेशन सेलेक्ट करें, पाकिस्तान में देखें कोयटा कितना आपका, कोयटा बलूचिस्तान के अंदर आपको सोलर एनर्जी की वो डिमांड नजर आ रही है। तो इसके अंदर मेथोडोलॉजी लिखें, ये सारी इज द पार्ट ऑफ दैट टूल। और उसके अंदर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आप लिखाएं, लोड है, जनरेटर है, फॉर एग्जांपल इधर पीवी लगा दिया आपने, इधर विंड लगा दिया, सारा लगाने के बाद आपने डिफरेंट कॉम्बिनेशन एनालाइज किए, देखा कि कौन सा सिस्टम मोस्ट फिजिबल है। तो ये इस हवाले से आप कर सकते हैं। ठीक, तो ये बस इस तरह मैं इसको इधर ही वाइंड अप करूंगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो यू कैन आस्क। और चौथा सॉफ्टवेयर जस्ट उसकी मैं शक्ल आपको दिखा दूं, क्योंकि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लो एमिशन के हवाले से हर वक्त ग्लोबली ये बात चल रही है लो एमिशन के हवाले से। तो लो एमिशन प्लेटफॉर्म ये आपका लीप सॉफ्टवेयर इसको कहते हैं। इस सॉफ्टवेयर में आप एमिशन के हवाले से जो भी आप काम करें उसके अंदर एमिशंस का सिनेरियो और ये मेथोडोलॉजी आप वो डाल सकते हैं। और इसके अंदर एमिशंस के हवाले से अगर देखें तो ये लीप सॉफ्टवेयर जस्ट आई हैव लाइसेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर लो एमिशन, यू कैन सी हियर एनालिसिस प्लेटफॉर्म। जस्ट इसको ओपन करें तो यहाँ आप देखेंगे इस एनवायरनमेंट के अंदर कि यहाँ रिजल्ट्स, एनर्जी बैलेंस और समरी और ये सारा पूरा आप इसका डिटेल्ड ओवरव्यू कर सकते हैं। So that's all from just the overview. Many things are skipped, so no issue. Just I want to give the idea. I think so. You have got that concept, and if you have any question, you can ask. Thank you from my side.